everyone. चलिए पहला लेक्चर that is on the logical reasoning module. We are starting with a fundamental topic that is direction sense, which is common for so many examination. और जो इसमें हम लोग concept use करने वाले हैं वो आपके लिए beneficial होंगे अगर if you are preparing for CSAT, that is the Civil Services Aptitude Test, or if you are planning to go for SNAP, let's say MAT or CMAT or NMAT or any of the MBA entrance examination, or if you're looking out for placement companies, placement papers, let's say you're targeting companies such as TCS, Infosys, Wipro, Accenture, Tech Mahindra, I'd suggest you should definitely go through these videos because in this we would be discussing in detail the core concepts of the topics involved. चलिए पहला टॉपिक है, इसको मैंने easiest पिक किया है so that आपके लिए फन भी हो, ये मज़ेदार भी हो, and at the same time you learn so many things out of this particular video. चलिए starting with the first one. So देखो यार basically क्या है, let's understand what are the main directions that we have. So the main directions that we have are four and they are north, south, east and west. ये core fundamentally. Now अगर मैं इसी चीज़ को बाइसेक्ट कर दूँ, बिफोर बाइसेक्टिंग जस्ट थिंक ऑफ इट, अगर मैं नॉर्थ जा रहा हूँ और मैंने एक राइट टर्न ले लिया, मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊँगा? थिंक ऑफ इट, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ इट. मैं नॉर्थ जा रहा हूँ, मैंने एक राइट टर्न ले लिया, मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ? एम आई गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट और एम आई गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट और एम आई गोइंग टूवर्ड्स साउथ ईस्ट? क्या होगा? ये क्वेश्चन है. चलिए तब तक मैं आप सोचो, मैं फिलहाल कार्डिनल डायरेक्शन बना लेता हूँ, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, गोइंग नॉर्थ takes a right turn, which direction it be going? It is dependent on the movement, कि कितने डिग्री से मैं मूव कर रहा हूँ, माई एंगल ऑफ मूवमेंट. सो व्हेन आई से द टर्म राइट टर्न और लेट्स से लेफ्ट टर्न, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अ मूवमेंट ऑफ 90 डिग्री. अ पॉइंटर अगर फिक्स है कि मैं नॉर्थ से राइट टर्न ले रहा हूँ, दैट बी डेफिनेटली गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट और कोई डायरेक्शन नहीं. And this as a whole can be taken as an 8 directions compass. Clear है? चलिए, this was all about the directions, basic, and I feel most of you know this part. चलिए, moving on. अब ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसे सही सही अभी आंसर करते हो ना, तो आपका 50% डायरेक्शन ऐसे ही खत्म हो गया. So please pause this video and try to answer this. Whatever you get, the objective is कि आपको इसे सही नहीं बनाना है, आपको इसे सही से समझना है. So please do it. Make it a practice session and do these things as I tell you. What is the direction of A from B and what is the direction of B from A? देखो simple है, बस words change हो रहे हैं, elements की position change हो रही है. पहले वाले में देखते हैं. And these are two horizontal straight lines. A from B. तो आपको जो कॉम्पस है वो B पे लगना चाहिए. अगर आपने B पे प्लेस करा, आप A की तरफ अगर जा रहे हो, A किस तरफ आपको दिख रहा है B पे अगर आप देख रहे हो. B से अगर आप देखोगे तो A आपको किस तरफ दिख रहा है? दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. तो ये वेस्ट की तरफ दिख रहा है, राइट? Next, of B from A, place the compass at A. Now, north, south, east, west. आप A से ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको B मिल जाएगा. ये सबसे फंडामेंटल पार्ट है. अगर आप इसे समझ जाते हो तो आपके डायरेक्शंस के क्वेश्चन बिल्कुल सही सही बनेंगे. चलिए, मूविंग ऑन. लेट्स सी. Shivendra is facing north, takes an about turn. About turn is 180 degrees movement. So 180 degrees movement from north. आप बताओ. Yes, it is south. Correct answer. Question 2. Shivendra is facing north again, takes a right turn. Which direction is he facing now?
north से right, east. Facing north, takes a left turn. Which direction is he facing now? West. Simpler one to start with, just to build the concept. That's it. Now, most important part, the Pythagoras theorem, which is used to calculate the hypotenuse of a right angled triangle, and with that, the hypotenuse is required to calculate the shortest distance, because which is the shortest distance. चलो समझते हैं इसे. मान लो एक पॉइंटर है, A से C जाना है, so I can travel through this path. I can go from A to B and then from B to C. Let's say this is 3 meters, this is 4 meters. So how much distance have I covered here? 3 plus 4, which is 7 meters. Now, the other way is this is 3, this is 4. I could have also directly traveled from A to C. और जब मैं डायरेक्ट ट्रैवल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कितना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ. लेट्स सी. सो थ्योरम ये बोलता है दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द राइट एंगल ट्रायंगल, और जितनी बारी मैं ऐसे डायरेक्शंस ड्रॉ करूंगा आई वुड बी गेटिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज विद एवरी लेफ्ट और राइट टर्न आई गेट अ राइट एंगल. नाउ दिस इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज और एच. व्हाट इज द फॉर्मूला? h square is equal to p square plus b square. P is the perpendicular and b is the base. P could be this value and b could be 4. Let's see यहाँ पे क्या आ रहा है. रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 रूट में दिस इज रूट अंडर 25 विच इज 5 मीटर्स. नाउ थिंक ऑफ इट. पहले अगर मुझे ए से बी जाना था मैं 7 मीटर चल रहा था. अब मैं ए टू सी जा रहा हूँ डायरेक्टली. आई एम ओनली ट्रैवलिंग 5. सो 2 मीटर सेव हो रहे हैं डिस्टेंस में, एंड सो दिस इज द शॉर्टेस्ट straight line distance. I hope the Pythagoras theorem is clear. Moving on. First question. Abhishek started from a point A towards north and walked 40 meters. Point A towards north and walked 40 meters. 40. He then turned right and walked another 30 and reached point B. 30 and reached point B. At what minimum straight line distance and in which direction is point B from point A? देखो minimum straight line distance, again it is the question based on hypotenuse. तो ये क्या बन जाएगा? AB. मैं ऐसे अगर यहाँ पे लिखूँ AB is equal to root under 40 square plus 30 square, which is nothing but root under 1600 plus 900, which is root under 2500, which is 50 meters. This is 50 meters. Now first question, at what minimum straight line distance? So it is 50 meters. Point B फ्रॉम ए से देखो तो बी कहाँ पे दिख रहा है? ए से अगर आप देखोगे तो बी नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है. एट वॉट मिनिमम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस? सो इट इज अगेन 50 मीटर्स. इज पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी? अब पॉइंट बी से देखना है. पॉइंट बी से देखोगे आप तो आपको दिख रहा है ये साउथ वेस्ट में है. सो 50 मीटर्स साउथ वेस्ट फॉर द सेकेंड वन. आप देख रहे हो अगर एक पोजिशनिंग चेंज हो रही है मेरा आंसर बिल्कुल चेंज हो जा रहा है डायरेक्शन का. डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शंस चेंज हो रहे हैं. बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा. मूविंग ऑन. Zoya starts from point Q and walks 5 kilometers west. Point Q and walks 5 kilometers towards west. From here turns left and walks for 2. She then turns left again and walks for another 7. From here to here it is 5. Let's say 2 more. So it is 7 kilometers. 5 kilometers and 2 more kilometers. 7 को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया. I hope this is clear to everyone. In which direction and how far is Zoya with respect to, here is Zoya, Z, with respect to point Q. Okay. Which direction is she? She is not
in the south. She is in southeast direction. And how far is she? This is 2 kilometers. Let's draw this triangle. 2 kilometer, 2 kilometer. So what is this? Root under 2 square plus 2 square. 2 square becomes common. What are we left with? 1 plus 1. क्या बच गया ये? 2 square and 2. 2 square की वजह से ये 2 बाहर आ गया. This is 2 root 2 kilometers southeast. That is the complete answer for this. Clear? Chaliye, moving on. Abhishek started from point X and walk 40 meters north. 40 meters north जा रहा है. चला दो यार, जाने दो इसे. जाने वाले को किसने रोका है? From here, took a right turn and walked for another 20. Took a right turn, walked for another 20 meters. Now, he walked 20 meters towards north. 20 meters towards north. Took a left turn to walk another 20. Okay. Now, took a left turn again and walked for 40. तो देखो 20 यहाँ and 20 more, so half of this value. 40. This as a whole is 40 meters. Here is somewhere facing south. In which direction is he from the starting point? From the starting point ये किस डायरेक्शन में है? तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप देखो तो ये नॉर्थ की तरफ है ना, ऊपर है आपसे. यहाँ से स्टार्ट किया था, ये ऊपर दिख रहा है आपको. हाउ फार इज ही? 20 मीटर्स. ये नहीं पूछा है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग. ही इज फेसिंग साउथ. आपसे पूछा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और एस पी. यहाँ से आप कॉम्पस लगाओ कि आपको ये नॉर्थ में दिखेगा. एंड हाउ फार? जस्ट 20 meters. चलिए, मूविंग ऑन. A river flows from east to west. East to west, इस तरफ ऐसे. And on the way turns right. Okay. After going some distance, it encounters a hill. It goes around the hill clockwise in a quarter circle. देखो, this is a complete circle, right? What is a quarter circle? This much is a quarter circle. तो मान लो अगर ये हिल है, ये क्वार्टर सर्कल कुछ ऐसा होगा clockwise में. So which direction is he facing now? The river again facing north. Now from here takes a left turn. नॉर्थ फेस करते हुए लेफ्ट टर्न दिस डायरेक्शन. इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फ्लोइंग? टूवर्ड्स वेस्ट. लेट्स से हियर वाज द हिल. क्लियर है? चलो, मूविंग ऑन. अ क्लॉक इज सो प्लेस्ड दैट एट 9 AM. चलो पहले क्लॉक बना लो, फिर बात है. 12, 6, 3, 9. So place that at 9 AM. 9 AM बनाओ. This is hour hand. This is minute hand. और ये नॉर्मल डायरेक्शंस क्या होंगे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. बट क्या बोल रहा है? द मिनट हैंड ये ऊपर वाला पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ नहीं, नॉर्थ ईस्ट. अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये नॉर्थ होना चाहिए, और अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ होना चाहिए, और ये ईस्ट होना चाहिए. ये नहीं, ये साउथ ईस्ट होना चाहिए, ये वेस्ट होना चाहिए, ये साउथ वेस्ट होना चाहिए, और ये नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए. नाउ which direction does the hour hand point at 3 PM? Hour hand 3 PM में ऐसे point करेगा. And if it is 3 PM, the hour hand should ideally be pointing towards east, लेकिन ये साउथ ईस्ट की तरफ फोकस करेगा.
क्लियर है? चलिए मूविंग ऑन। डायरेक्शन में क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो ध्यान रखना है। ये अगेन इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग, अनदर टॉपिक ऑफ रीजनिंग जो भी अपने लोग करने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन। चलिए एक्स एंड वाई। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है ना, ये जो इंफॉर्मेशन है द कोड्स, डोंट स्टार्ट बाय दीज कोड्स। बिल्कुल पढ़ना ही नहीं, देखना भी नहीं, बिल्कुल इसे कैंसिल करके, कैंसिल नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग से हटा दो। यू विल सर्च फॉर द इक्वेशन इन द क्वेश्चन। ये रहा इक्वेशन, इसे उठाओ, इसे सॉल्व करने पे ध्यान दो। ए हैशटैग बी $C हैशटैग डी। लेट्स स्टार्ट। अब इट्स नॉट नेसेसरली कि अगर मान लो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी होता तो मैं बॉड मास लगाता, नॉट नेसेसरली। बॉड मास लगाओगे तो भी आंसर आएगा, बॉड मास नहीं लगाओगे तो भी आंसर आएगा। आपने पहले ये सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, तो भी करेक्ट आंसर आएगा। आप पहले इसे सॉल्व करते हो, फिर इसे सॉल्व करते हो, फिर इसे सॉल्व करते हो, तो भी करेक्ट आंसर आएगा। करेक्ट आंसर हमेशा सही आएगा। एडवाइजेबल ये होता है कि आपने स्टार्टिंग से सॉल्व करना है, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ए हैशटैग बी। हैशटैग वाले पार्ट पे आ जाओ। यहाँ पे बोला जा रहा है द सेकेंड एलिमेंट विच इज वाई is 1 meter to the east of the first element. Second element is 1 meter to the east of the first element. Done. $C. Second element is 1 meter to the north of the first element. Next. C hashtag D. Second element is 1 meter to the east of the first element. क्या पूछा है? A is facing north. D is in which direction with respect to B? With respect to B. B से देखो D कहाँ पे है। अगर आप B के नज़र से देखो तो D नॉर्थ ईस्ट पे है। D is in which direction with respect to B? B से कॉम्पस लगाओ और देखो कि कहाँ दिख रहा है आपको। क्या ये ईस्ट में दिख रहा है? क्या ये नॉर्थ में दिख रहा है? नहीं, नॉर्थ और ईस्ट के सेंटर पे दिख रहा है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट पे दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने मेहनत करी है, ध्यान दिया है क्लास में। लेट्स सी कितने लोगों ने ध्यान दिया है, ये मुझे समझ में आएगा जब आप इसका आंसर कमेंट में डालोगे। तो जल्दी से आंसर करो इसे और मुझे बताओ कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहते हो, प्लीज़ ऑल्सो मैंशन दैट एंड प्लीज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ, बिकॉज CSAT भी आने वाला है, CMAT भी आने वाला है, स्नैप भी आने वाला है, और कंपनी के प्लेसमेंट पेपर्स तो चल ही रहे हैं। ऑल राइट, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।